خطاب دینے جا رہا ہوں پروفیسر محترمہ جوہریہ جمیل ہاشمی صاحبہ، سابقہ صدر شعبہ عربی عثمانیہ یونیورسٹی سے، وہ آج کی اس مناسبت سے ہم کو اپنے خطاب سے نوازیں۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان کی اہمیت، عربی زبان کی خصوصیات، عربی زبان جاننا، سمجھنا، پڑھنا ہر مسلم کے لیے کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں چند معلومات، چند باتیں جو میں جانتی ہوں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتی ہوں۔ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس جہاں میں وقفے وقفے سے، جبکہ اس زمانے کے لوگ انتہائی جہالت اور انتہائی اپنی انسانیت کی نیچی سطح پر پہنچ گئے تھے، تو اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے راضی فرمایا تاکہ یہ قوم کو جو بھی اس زمانے کی ہو اس کو صحیح راستے پر بلائے۔ تو آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تمام نبیوں کی اگر آپ حیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات خاص طور پہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس زمانے میں بھی بھیجا، اس زمانے کے لوگ جس فن میں ماہر تھے، اس نبی کو اس فیلڈ میں، اس علم میں، یا وہ جو بھی زمانے کے لوگوں میں مہارت تھی اس میں انتہائی درجے کا علم عطا کر کے بھیجا تاکہ ان لوگوں کو یہ قائل کریں کہ آپ جو بھی نبی ہوں وہ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات ایک عام ہے، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی طب میں ماہر ہے، اگر میں اس کے سامنے اپنی مہارت کا اظہار کرنا چاہوں تو مجھے طب کو ہی اختیار کرنا پڑے گا، بجائے اس کے اگر میں ایک طب کے ماہر کے سامنے موسیقی کی اہمیت کے بارے میں بولوں، اس میں اپنی معلومات کا اظہار کروں تو اس کو کوئی اس پر اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ضرور ہے کہ موسیقی کے بارے میں کیا معلومات ہے، اس کو کچھ معلومات میں اضافہ ہوگا، لیکن وہ آپ کی قابلیت کو ہرگز نہیں ایکسپٹ کرے گا کیونکہ وہ اس کا ماہر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جب بھی بھیجا، اس قوم میں جو سب میں چیز جس میں ماہر تھے اسی کو اپنے نبی نے بدرجہ اتم عطا کر کے بھیجی تاکہ لوگ اس پر ایمان لائیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کو قبول کریں اور مذہب کو اختیار کریں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو بھی نبی آیا ہے نا، جب عیسیٰ اتنے ماہر تھے ہے نا، آپ ماں پیٹ کے اندھوں کو بھی کا بھی علاج کر دیتے تھے اور مرے اللہ کے حکم سے آپ زندہ کر دیتے تھے۔ لیکن آپ یہ بھی غور کرنے ہوں گے کہ باوجود اتنی بڑی نشانیاں لینے کے بھی ساری قوم ان کی ادعا کو قبول نہیں کی سوائے چند لوگوں کے، ہے نا۔ تو اسی طرح لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا جو ہے اہتمام آپ کو راہ راست پہ لانے کے لیے کیا تاکہ آپ اس کی رحمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو سمجھیں اور اس میں جو احکامات اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجے ہیں ان کو قبول کریں۔ اب آئیے میں آپ کو زبان عربی کے مطابق بولنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں عربی کو قرآن کے نزول کے لیے انتخاب کیا، ہے نا۔ ویسے تو زمانے میں بہت ساری زبانیں تھیں، کسی اور زبان کا انتخاب ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو کیوں
इंतखाब किया। और अरब कौम अरब का क्यों इंतखाब किया? इस्लाम की दावत की इब्तिदा के लिए। आपको ये अच्छी तरह मालूम है, मैं समझती हूँ आप में से बहुत सारे अच्छी तरह जानते हैं कि कौम अरब जितनी सख्त, दुरुस्त, जितनी मजबूत, जितनी अकेली, दुनिया की किसी कोई कौम का मुकाबला नहीं कर सकती। तो अल्लाह ने इस सख्त तरीन जाहिर कौम, ये सख्त तरीन दुरुस्त कौम पर अपने नबी को भेजा ताकि उनको जब वो ईमान लाए, जब वो सुधर जाए तो फिर सारी दुनिया का ईमान लाना बहुत आसान है। अब देखिए कि अरबी लाजमी है, जब कौम अरब को कौम अरब का इंतखाब किया गया और अरबी ज़बान का इंतखाब किया गया, इसलिए कि अरबी ज़बान खुदा ने जो मुख्तलिफ मौजज़ात अपने दूसरे नबियों को दिए है ना, सुलेमान हर नबी का देखा कि खास उनका वक्त था जिसमें वो सबसे माहिर थे, है ना। तो रसूलुल्लाह ने अरबों का इंतखाब किया, ज़बान अरबी का इंतखाब किया। अरबी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि लफ्ज़ अरब के माने वसी व बलीग के हैं, और अरब अपने आप को अरब सारी दुनिया को अजम कहते हैं। अजम के माना गूंगे के, यानी उन्हें अपनी ज़बान पे इतना फ़ख्र, अपनी ज़बान पे इतना नाज कि वो कहते कि ज़बान को सिर्फ हम ही जानते हैं, वरना हमारे सामने सारी दुनिया गूंगों के बराबर है ना। और ये उस वक्त नाज़िल हुआ जब रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए। तो आपने ये भी सुना होगा कि ज़माने जाहिलियत का नाम बहुत सुना आपने, कि ज़माने जाहिलियत के बाद जो है इस्लाम आया। तो ज़माने जाहिलियत के नाम से ही आपका जहन इस तरफ जाता है कि उस ज़माने में लोग जाहिल, पढ़े लिखे, इल्म से नावाकिफ़ थे। ये गलती आप हरगिज़ न करें, बल्कि उस ज़माने में अरबी ज़बान अपनी इंतहाई उरूज पर थी। उस ज़बान में तरक्की करने के लिए अब कोई और मदारिस की जरूरत नहीं थी, बल्कि अपनी पूरी वसअत के साथ आप खित्ते अरब में वो चमक रही थी। और आपको मालूम होना चाहिए कि अरब जो है उस ज़माने में ज़माने जाहिल इसलिए कहा जाता है कि इस्लाम से पहले का दौर। जाहिल के माने अनपढ़ लिखे के नहीं है, बल्कि इस्लाम से नावाकिफियत, उस पीरियड को जहाली दौर बोलते हैं। उसके बाद ही आगाज़ इस्लाम हुआ। लेकिन आम तौर पे आप लोगों के जहन में ये है, जाहिल कहने से ये मुराद है कि लोग इस ज़माने में पढ़े लिखे नहीं थे, जाहिल थे, वो नहीं जानते थे, कैसे कोई बात नहीं थी। बड़े बड़े मुशायरे मुनाफिक किए जाते थे, जिसमें पूरे पूरे क़बाइल के लोग शरीक होते थे, अपना कलाम पेश करते थे। ज़बान की तरक्की और उरूज का आदम ये था कि आपस में उस ज़माने में बात भी शेर व शायरी में होती, सिर्फ उसमें वज़न की कमी होती। तो अब आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि अरबी कितनी तरक्की याफ्ता शक्ल में मौजूद थी। और अल्लाह जब अरबों को इतना नाज था, जब अपनी ज़बान पे इतना उनको गुरूर था, तो अल्लाह ने कुरान उसी ज़बान में नाज़िल किया ताकि वो कुरान समझें, है ना। कि अपनी ज़बान और दूसरी बात, अल्लाह का कलाम कोई आपका मेरा या किसी और कौम का कलाम नहीं है, कोई बात नहीं है, बल्कि उसको मुतहम्मिल होने के लिए वो ज़बान में उतनी ही कैपेसिटी, उतनी ही उसमें वसअत, उतनी ही उसमें गहराई हो, तभी वो अल्लाह का कलाम अपने अंदर समझ सकती है। तो ज़माने में सिवाय और आज तक भी अगरचे कि आप इससे नावाकिफ़ हो, गफलत बरतें, बल्कि रहती दुनिया तक अरबी ज़बान की जो अहमियत, अरबी ज़बान की जो दुनिया, उसकी जो वसअत, उसके अंदर हर ख़यालात को समझने की ताकत कोई और ज़बान नहीं। तो अल्लाह ताला ने ज़बान अरबी को इख्तियार किया, इंतखाब किया, और उसमें आपने
कौम अरब से रसूल अल्लाह का इंतखाब किया और आप पर कुरान नाज़िल फरमाया। तो ये अरबी ज़बान की अहमियत है कि कुरान जो है, अब आइए कि कुरान है क्या। मैं हर कोई ये बोलता कि कुरान दस्तूर हयात है, कुरान इस्लाम का कानून है, कुरान में अल्लाह ताला ने इस्लाम के बारे में हर चीज़ लिखी, लेकिन ये सिर्फ हमारे अल्फाज हैं। क्या हकीकत में हमने गौर किया कि दस्तूर हयात जो अल्लाह ताला ने कुरान में अरबी ज़बान के ज़रिए कुरान में जो नाज़िल किया, क्या हम उस पर अमल पैरा हैं? क्या उस ज़बान में जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल फरमाया उसकी कि अब जब से भी हम वाकिफ़ हैं, लेकिन हम दावे तो ये करते हैं कि हम मज़हब इस्लाम के पैरों हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बग़ैर कुरान जाने, बग़ैर अल्लाह के कलाम को समझे आप अगर ये दावा करें कि मैं मुसलमान हूँ, बहुत अच्छा मुसलमान हूँ, तो आप ही इंसाफ करिए क्या आपका ये दावा सही है। अगर कोई आप पे दिमाग करे तो गुस्सा मैं भी शामिल हूँ, है ना। अगर मैं कोई मुझसे कहे कि आप मुसलमान नहीं हैं, तो आप बोलिए आप फैसला कि आप सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन मुसलमान की तारीफ क्या है, लफ्ज़ मुस्लिम का मफ़हूम क्या है, क्यों यह लफ्ज़ इस कौम के लिए इंतखाब किया गया, ये माना कभी समझने की हमने ज़रूरत गवारा है। इसको समझने के लिए कुरान समझना होगा, कुरान समझने के लिए अरबी ज़बान जाननी होगी, अरबी ज़बान पढ़नी होगी। जब तक आप अरबी ज़बान न पढ़ें कुरान, आप जैसे अभी आपने फरमाया कि जब हम दूसरी ज़बानें पढ़ते हैं, उनमें शेर व शायरी सुनते हैं तो आप सर झुकने लगते हैं, आप उसकी तारीफ़ करते हैं, उससे लुत्फ़अंदोज़ होते है ना। क्यों कि आप उसको अच्छी तरह समझ पाए। लेकिन कुरान के सिलसिले में ये है कि अल्लाह का वो कलाम जिसको, जैसा कि अभी आप साहब ने फरमाया कि लोग बोलते थे जिस वक्त इस्लाम शुरू हुआ कि जब रसूल अल्लाह के पास जाने से रोकते थे, और इसलिए कि कहीं कुरान आप ये लोग ना सुन लें, अगर कुरान उनके कान में पड़ जाए तो ये मुसलमान हो जाएंगे।